In the last lecture, we have discussed the This call is now being recorded. Rankine vapor power cycle. Okay, so this is the pressure in boiler PB and pressure in condenser is PC. So in the Rankine cycle, we have two pressure limit. तो दो प्रेशर लिमिट होती है, एक तो पीबी होता है, दूसरा पीसी होता है, और साइकिल इन्हीं दो प्रेशर के बीच में वर्क करती है. So this is our Rankine cycle. Then we have calculated the efficiency of the Rankine cycle. Just give me a 1 minute. Okay. Then we have calculated the efficiency of the Rankine cycle. So efficiency is net work upon heat supply. So what is the net work? WT minus WP. And what is the heat supply? Is QH. So we have the value of WT and WP and also QH. So we put the value and we will have S3 minus H4 minus in bracket S2 minus H1 upon H3 minus H2. So this is the efficiency of a Rankine cycle. Then we have seen the two different diagram of the Rankine cycle. So Rankine cycle may be like this or it may be like this. So in the both cycle, one thing is common. At one state, we have saturated liquid state. So we know this is the efficiency formula, and how we calculate the work in the pump. The pump work is equal to H2 minus H1, and we can write for the open system is WP equals to B integration of dP. So when we integrate, we will get dP in the WP equals to B into P2 minus P1. It means what is P2? PB, or this is P1 is PC. क्योंकि देखिए क्या है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है लिक्विड का, वो वेपर से बहुत ज्यादा कम होता है. अभी मैं आपको टेबल में भी दिखाऊंगा. अगर आप कंपेयर करेंगे VF और VG को, ओके, तो VG की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है इन कंपेयर टू VF. तो जो पंप का वर्क होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. कल हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो हमने देखा था कि जो WP आ रहा था वो 2.8 आ रहा था. इट मीन जो पंप में वर्क देते हैं वो बहुत ही कम होता है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैलकुलेशन में हम WP को इग्नोर भी कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली इफिशिएंसी लिख लेते हैं WT अपॉन QH. बट अगर WP निकाल सकते हैं तो कैलकुलेट करना है. ओके, देन वी हैव डिस्कस दिस न्यूमेरिकल. यही न्यूमेरिकल किया था कल. रिप्लाई कीजिए
यही न्यूमेरिकल किया था कल? Yes, sir. Yes, ओके, sir. देन सो वी हैव कैलकुलेटेड H1 की वैल्यू हमने डायरेक्टली निकाल ली थी, साथ में हमने H2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, कहाँ से? H2 कैलकुलेट हो गया था, H3 कैलकुलेट हो गया था और H4 भी कैलकुलेट हो गया था, साथ में X4 भी कैलकुलेट हो गया था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालिए, इफिशियंसी निकालिए, वर्क रेशियो निकालिए और स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन निकालिए। तो हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन तो कल ही कैलकुलेट कर दिया था और ये H1, H2, H3, H4 की वैल्यू आ गई थी। यहाँ तक सबको क्लियर था? किसी को कोई डाउट था या आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. आगे, ओके। Then we have also calculated the value of WP. WP की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी। Now we can also calculate the value of WT. WT क्या होगा बेटा? WT साइकिल में WT क्या था? H3 माइनस H4। तो अगर हम H3 माइनस H4 करेंगे तो then we will got the value of WT. So we have the value of WT and WP. We can also calculate the value of QH. QH is equal to H2 minus H1. So when we do H2 minus H1, we will got, H2 minus H1, H3 minus H2. What? H3 minus H2. देखिए साइकिल कैसे थी आपकी? साइकिल इस तरीके से थी। So this is 1, this is 2, 3 and 4. तो बॉयलर कहाँ पर है? 3 से 4 के बीच में। तो जो हीट सप्लाई होगी that is H3 minus H2. So when will you do H3 minus H2, you will got heat supply. Okay, आपके पास अब सब कुछ आ गया है। Now you can calculate the efficiency. What is efficiency? Net work upon heat supply. So what is net work? WT minus WP. And what is heat supply? That is QH. So now we have the value of WT. We have also value of WP. And we have also the value of QH. So now put the value and tell me the answer. Value put कीजिए और आंसर बताइए फटाफट। तो 0.33 कंफर्म करो बेटा, कोई और एक जन और कंफर्म करो कोई। Yes, sir. 0.335. So, Sir, 0.33. तो सही है। so we can write it in percentage. So that is 33.6 or 33.5 approximately. This is the efficiency of your Rankine cycle. Okay. Now read the question. In the question, the examiner asked, calculate the dryness fraction. We have already calculated the dryness fraction. Second, क्या बोल रहा है? क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? इफिशियंसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो इफिशियंसी भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव टू कैलकुलेट इज वर्क रेशियो। वर्क रेशियो एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज वर्क रेशियो। Work ratio is defined as the ratio of net work divided by the turbine work. Okay, so what is net work? Net work is WT minus WP and divided by turbine work, that is WT. So if you put the value of WT and WP and WT in the equation, we will get, tell me the work ratio. और ये क्वेश्चन जो वर्क रेशियो है ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया था कि कैलकुलेट द वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो कैसे डिफाइन होता है? वर्क रेशियो डिफाइन होता है आपका W net अपॉन WT। सर 0.99। 0.99। So that is 0.996. So this is the work ratio. Next is the specific steam consumption. Okay, तो कितना स्टीम का कंजप्शन हो रहा है? ओके, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन को कैलकुलेट करते हैं हम 3600 डिवाइडेड बाय नेटवर्क WT माइनस WP। तो अगर हम WT माइनस WP को डिवाइड
3600 को डिवाइड करेंगे इससे WT माइनस WP से, तो हमको मिलेगा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। फर्स्ट आप एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इसकी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। 4.05 आ रही है। तो 4.05 4.05 किलो जूल पर किलो वॉट आवर। ओके, अब देखिए टोटल कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ था, टोटल वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ था रैंकाइन साइकिल से, कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ था टोटल? 887.51, यही वर्क प्रोड्यूस हुआ था टोटल, दैट इज नेट वर्क, WT माइनस WP। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब इसकी यूनिट देखिए क्या है, केजी किलोवाट आवर, और यहां पर क्या यूनिट है, किलो जूल पर केजी। क्या है? किलो जूल पर केजी। तो अगर मैं इसको क्या क्या लिखूं, 1/W नेट लिखूं, 1/W नेट लिखूं, तो क्या हो जाएगा ये 1/887.5, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? अगर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वन अपॉन करके kg per kilojoule. केजी पर किलो जूल। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, इसको हमने किस में लिख रहे हैं, किलोवाट आवर में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? किलोवाट आवर में। और एक आवर में कितने कितने मिनट कितने सेकंड्स होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60. 3600 60। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. So if we calculate this unit into kg per kilowatt hour, then we can write, यहाँ पर अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा ये, किलोवाट आवर। ओके, तो जितना नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कितना स्टीम कंजप्शन है ये शो कर रहा है। तो जनरली जब भी आपको कभी स्टीम स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कैलकुलेट करने को बोलेगा, क्योंकि जितना वर्क कर रहा है उसके हिसाब से कितनी स्टीम कंज्यूम कर रहा है। तो जितना स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप सीधे 3600 को डिवाइड करेंगे किससे, नेटवर्क से, और यूनिट क्या आएगी, केजी पर किलोवाट आवर। ओके, तो यूनिट इज इंपॉर्टेंट, आप इस यूनिट को नहीं भूलेंगे जब भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ओके, सिमिलरली वी हैव अनदर न्यूमेरिकल, हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है सेम तरीके का। इसमें क्या बोल रहा है, स्टीम इज द वर्किंग फ्लूइड इन अ आइडल रैंकाइन साइकिल। ठीक है, हमारे पास एक रैंकाइन साइकिल है जिसमें स्टीम वर्क कर रही है। सैचुरेटेड वेपर एंटर इनटू द टरबाइन, तो क्या हो रहा है, जो सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो एंटर कर रहे हैं टरबाइन पे 8 मेगापास्कल पे। तो यानी कि देखिए क्या होता है, पहले बॉयलर होता है और बॉयलर का आउटपुट किस में जाता है, टरबाइन। तो ये जो टरबाइन के अंदर एंटर करने से पहले प्रेशर कितना है, 8 मेगापास्कल, यानी कि किसका प्रेशर है ये, बॉयलर का प्रेशर EB बॉयलर का. बॉयलर का प्रेशर है। और इस टाइम जो ये स्टीम है कैसे कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर है, यानी कि सैचुरेटेड वेपर एंटर कर रहा है किसमें, टरबाइन के अंदर, एंड सैचुरेटेड लिक्विड एग्जिट एट अ प्रेशर ऑफ 0.008 मेगापास्कल। तो कंडेंसर का प्रेशर दिया हुआ है आपको 0.088 और सैचुरेटेड लिक्विड बाहर निकल रहा है कंडेंसर से। तो हम साइकिल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम साइकिल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये रहा आपका सैचुरेटेड वेपर जो टरबाइन के अंदर एंटर करेगी। तो ये टरबाइन के अंदर एंटर किया और यहां से फिर कंडेंसर में गया, और कंडेंसर के आउटलेट पे क्या है, सैचुरेटेड, कंडेंसर के आउटलेट पे क्या है, एग्जिट,
सैचुरेटेड लिक्विड एग्जिट द कंडेंसर, तो कंडेंसर के एग्जिट पे सैचुरेटेड लिक्विड, दिस इज 1 पॉइंट, पंप में जाएगा, दिस इज 1 to 2, देन बॉयलर में जाएगा 2 से 3, और फिर टरबाइन में जाएगा 3 से 4। तो आपको क्या हुआ है, आपको यहाँ पर पीबी किसकी वैल्यू दे रखी है, पीबी की वैल्यू दे रखी है और पीसी की वैल्यू दे रखी है। तो दो वैल्यू आपके पास हैं और आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, और कुछ दिया हुआ है, हाँ एक चीज और दी हुई है, द नेट पावर आउटपुट ऑफ द साइकिल इज 100 मेगावाट। तो आपको क्या दिया हुआ है, टोटल जो नेटवर्क है डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है डब्ल्यू नेट, 100 मेगावाट। ओके, सो दिस इज गिवन एंड डिटरमाइन द थर्मल इफिशिएंसी एंड द बैक रेशियो, बैक वर्क रेशियो। देखिए दो टर्म होती हैं, एक होता है वर्क रेशियो, वर्क रेशियो डिफाइन होता है किससे, नेट वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, और जो बैक वर्क रेशियो होता है ये डिफाइन होता है पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। क्लियर, तो इसमें तो अभी कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत बात की बात है। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि पहले आपको ये डायग्राम बनाना था, वो मैंने बना के दे दिया आपको, टीएस डायग्राम। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको H1, H2, H3 और H4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे भी करके। जब तक ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब एक बार आपके पास ये चारों वैल्यू आ जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, WT निकालेंगे, WP निकालेंगे और फिर इफिशियंसी कैलकुलेट, QH निकालेंगे और फिर उसका इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल सॉल्व दिस बैक वर्क रेशियो। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी क्लास में कराऊं या आप लोग खुद से करेंगे, या अभी करेंगे क्लास में, क्या चाहते हो, अभी क्लास में करना चाहते हो या बाद में कर लोगे, कुछ और पढ़ाऊं, आगे बढ़ूं, या अभी मैं करवाऊं इस क्वेश्चन को, क्या चाहते हैं बताइए आप लोग। सर एक बार खुद ट्राई कर ले। कब करोगे, अभी करोगे या घर से बाद में करोगे, लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद कर लेंगे, दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे, तो अभी पूछ नया लेंगे टॉपिक बता सर। दो। हाँ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटा, सर मैं एक डाउट था, ये जैसे आपने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है यहाँ पे, तो हाँ इसका मुझे पता नहीं चला कि 4 पॉइंट आपने नीचे कैसे, मतलब डायरेक्ट नीचे कैसे लिख दिया 4 पॉइंट। अच्छा, एक मिनट। देखो बेटा, योर फर्स्ट प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। तो आपने क्या किया, आपके पास दो प्रेशर लाइन होंगी, आपको पता है कि दो प्रेशर होंगे, बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर। तो मैं बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले। दिख रहा है ये इनकी दिख रही है, नहीं दिख रही है, यस सर देखिए। दिख रही है ना। और दूसरी लाइन किसकी है, पी सी। तो हमारे पास दो प्रेशर हैं, फर्स्ट वन इज पीबी एंड सेकेंड वन इज पी। अब देखिए साइकिल में हो क्या रहा है, साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है 1 पॉइंट से। सो 1 से 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, तो 1 एंड 2, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। उसके बाद क्या हो रहा है, बॉयलर में हीट अप हो रहा है। तो बॉयलर में हीट होगा तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो फिर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन फॉलो करेगा और उसके बाद वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी दिया हुआ है कि सैचुरेटेड वेपर है,
एट द एंट्रेंस ऑफ द टर्बाइन। अब टर्बाइन में कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा? टर्बाइन में हो रहा है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लाइन कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन होगी इस तरीके से एंट्रोपी एक्सिस पे। अब कहां तक एक्सपेंड करेंगे? कहां तक एक्सपेंड करेंगे? कौन से प्रेशर तक? पीसी के प्रेशर तक। तो जो ये वाला पॉइंट जब इस वाली लाइन को काटेगा, पीसी वाली लाइन को, तो दैट इज योर 4 पॉइंट। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और फिर 4 से वो कंडेंसर के अंदर एंटर करेगा और फिर पंप में चल जाएगा। सो दिस इज 1 2 3 4। आयुष बेटा समझ में आया यहाँ पर कैसे आया ये पॉइंट? यस सर, आ गया। ओके, यहाँ पर क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर प्रेशर था, और वो हमेशा कहाँ से? दो ही प्रेशर होते हैं, बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर रैंकाइन साइकिल में। ओके, तो वहीं पे आके वो रुकेगा। और कोई डाउट बेटा किसी को पूछ लो। सर डायग्राम बनाना कंपलसरी है ना? डायग्राम बेटा देखो ऐसा है, सपोज इन दिस क्वेश्चन उसने बोला कि यहाँ पर ये सैचुरेटेड वेपर है ना? क्या पता किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि ये सैचुरेटेड वेपर ना हो, ये साइकिल यहाँ से जाके सुपर हीट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में और फिर आपको यहाँ पर एंट्रोपी चेक करनी पड़ेगी इस प्रेशर पे कि ये इस वाले रीजन में गिरेगा या अंदर ड्राइन, ये वाला पॉइंट जो 4th पॉइंट होगा वो यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि इस लाइन पे होगा। तो कैसे आप करोगे कि कौन सी उस पे होगा? कुछ भी हो सकता है ना। तो डायग्राम बनाना इसलिए कंपलसरी है, और डायग्राम बना के आपको ये भी पता चलता है कि आप किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो। अगर एग्जामिनर हो, क्या पता आपने 1 पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, क्या पता एग्जामिनर नंबरिंग यहाँ से करता हो, क्या पता एग्जामिनर नंबरिंग यहाँ से करता हो। तो यस सर। आप H1 कैलकुलेट करेंगे, H2 कैलकुलेट करेंगे, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? हर जगह तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे नहीं कि ये वाला प्रेशर है, ये वाला टेम्परेचर है ना? तो जब भी आप एक बार अगर डायग्राम बना लेते हैं और उसमें 1 2 3 कर देते हैं, और उसके बाद आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं H1 या S1 या V1 लिख रहे हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो इस वाली स्टेट की बात कर रहे हैं आप। क्लियर? तो डायग्राम बनाना मस्ट है, टीएस डायग्राम बनाना। तो जब भी इसका न्यूमेरिकल करेंगे टीएस डायग्राम साथ में प्लॉट करेंगे। ओके सर 10 नंबर में आता है ना क्वेश्चन? 10 नंबर में मिनिमम इसको एक्सपेक्ट करो कि 10 नंबर में तो आएगा ही आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। ओके सर। अदरवाइज वो अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देगा जिसमें पूरी इफिशियंसी और वर्क रेशियो और सब कुछ निकालने को बोलेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आया, आपको एक स्टीम की कंडीशन दे दी कि एक स्टीम है जिसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, इसका ड्राई इंस्पेक्शन निकालो या फिर इसका कुछ ही निकालो, इसकी एंथैल्पी बताओ, तो वो हो सकता है कि वो 7 नंबर में या 5 नंबर में पूछ ले। मगर रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन आएगा और सब कुछ कैलकुलेट करने को बोल रहा है तो 10 नंबर में बनता है क्वेश्चन। ठीक है? ओके, नाउ दिस इज फिनिश। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो दोबारा से एक बार न्यूमेरिकल पोर्शन एक न्यूमेरिकल और सोल्व करके दिखा दूंगा आपको, या भी देखूंगा अगर और वैरायटी अगर एग्जाम में पूछी गई है आपके AKTU में तो और भी कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी बनती है रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट इज साइकोमेट्री। ठीक है, अब साइकोमेट्री क्या होता है? अब देखिए जो आपने अभी तक पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो बहुत इजी चीज थी। ओके, और जो ये शुरू हो रहा है साइकोमेट्री, ये इन सबसे भी खतरनाक चीज है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ समझ में आए हमारे, अदरवाइज रट्टा मारो यही चलेगा, डेफिनेशन याद करो और वहां जाकर कॉपी में लिख दो। अगर चाहते हो कि अंडरस्टैंडिंग बने तो बेटा जो भी मैं बताऊंगा वो सब सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से, तभी जब फाइनल आउटपुट, क्योंकि मैं शुरू में कुछ डिस्कशन करूंगा वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, मगर वो उसका बेसिस है, उसके बिना वो चीज नहीं बन सकती, वो चीज हो नहीं सकती। तो जो भी मैं डिस्कस करूंगा ध्यान से सुनिए। सर ये इस यूनिट का पार्ट है? हाँ, इसी यूनिट का पार्ट है, 4th यूनिट का पार्ट है। So next is pure substance. We have already discussed what is pure substance. A substance that has fixed chemical composition is known as pure substance, like helium, argon. Okay, these are the pure substance. For example, जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर अगर हीलियम भरी है तो कहीं पे भी हम कंपोजिशन चेक करेंगे, दैट इज He। यहाँ पर अगर कोई भी गैस भरी है, अगर ऑर्गन भरी है तो कहीं पे भी चेक कर लो, हमेशा कंपोजिशन मिलेगी Ar, यानी कि केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, वो नहीं बदल रही है। सिमिलरली कोई सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस, तो वो सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लाइक CO2, H2O, NH3। जैसे हम देख रहे हैं वाटर क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो मान लीजिए अगर वाटर भरा है तो यहाँ से अगर वाटर की एक ड्रॉपलेट उठा ली और उसकी कंपोजिशन चेक करी लैब में, तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1,
यहाँ पर से चेक कर लो, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो हमेशा क्या होगा, जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होगा उसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स होगी। केमिकल कंपोजिशन मतलब वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो सिमिलर जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है थ्रू आउट द सिस्टम। सिमिलरली अब क्या हो सकता है, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल। अभी तक तो हम बात कर रहे थे, पहले हमने बात करी हीलियम, सिंगल एटम था, है ना, सिंगल एलिमेंट था। फिर कंपाउंड एलिमेंट आ गए जैसे N2, CO2, H2O, NH3। अब कह रहा हूं मैं मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट, लाइक उसमें वाटर भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी मिक्स कर दिए 10-5, और मगर उनकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स रहेगी। जैसे मान लो मैंने मिक्सचर बनाया, एक गैस का मैंने मिक्सचर बनाया जिसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये एक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर की ये तो मिलेंगे, अगर मैं यहां से एक छोटा सा वॉल्यूम उठाऊं और इसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करूं तो उसमें N2 भी प्रेजेंट होगा, उसमें CO2 भी प्रेजेंट होगा और उसमें वाटर भी, इसमें उसमें अमोनिया भी प्रेजेंट होगी। इस अमाउंट में सपोज दिस इज 70%, दिस इज 10% एंड दिस इज ऑल्सो 10%। तो अगर मैं इस कॉर्नर से छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा वॉल्यूम उठाऊंगा और उसकी कंपोजिशन चेक करूंगा तो उसमें नाइट्रोजन 70% होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 10% होगी और अमोनिया भी 10% होगी। तो अगर ये केमिकल कंपोजिशन फिक्स रहती है, हमेशा 10% से ये रेशियो मेंटेन रहता है, 70-10-10 का, तो मैं कहूंगा कि ये मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अगर ऐसा हुआ कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हुई सिर्फ और अमोनिया नहीं है, तो यानी कि अगर इस कॉर्नर से उठाया मैंने और उसमें क्या हुआ, अमोनिया नहीं मिली मेरे को, तो फिर ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। या फिर इस कॉर्नर से उठाया मैंने सेंटर से, तीनों गैसेस मिली, नाइट्रोजन भी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, अमोनिया भी मिली, मगर ये परसेंटेज चेंज हो गया, ये 60 है, ये 20 है, ये 10 है, यानी कि क्या है, मिक्सचर क्या नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्लियर? ऐसी एग्जांपल है एक प्योर सब्सटेंस का एयर। आप जानते हो कि जो ये एटमॉस्फेयर में जो आपके एयर है चारों तरफ, इसमें क्या है, ये मिक्सचर है वेरियस गैसेस का। वेरियस गैसेस का कैसे, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, अदर गैसेस हैं, तो इनका मिक्सचर है। अब आप अपने रूम पे चेक करो इसकी कंपोजिशन की, ये एयर है, इसकी कंपोजिशन चेक करो, अपने घर जाके चेक करो, वहां भी यही है, मार्केट जाके चेक करो तब भी वही है, आप मेरठ से बाहर चल जाओ तब भी कंपोजिशन सेम है। यानी कि जो गैस, जो एयर होगी उसमें नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑर्गन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा। बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो 78% अप्रोक्सीमेट क्या होता है, नाइट्रोजन 20.99 अप्रोक्सीमेटली 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है, और 0.0094 यानी कि कितना हो गया, 0.94% ऑर्गन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 0.01% हाइड्रोजन होती है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, और ये कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहती है। यानी कि आप कहीं पे भी धरती में चले जाओ, चाहे आप यूएस चले जाओ, चाहे आप यूरोप चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, इंडिया चले जाओ, किसी भी पोर्शन में चले जाओ, एयर की कंपोजिशन ये फिक्स रहेगी। इसीलिए एयर को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। ओके, एयर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जो पर्टिकुलर एयर है, देखिए एक कुछ टर्म्स आएंगी यहाँ पर, उन टर्म्स को समझना अच्छे से जरूरी है। तो इस टर्म जो एयर होती है इसको बोलते हैं हम ड्राई एयर। क्या बोलते हैं, ड्राई एयर। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ूं? यहां तक क्लियर है? यस सर। इट मीन्स जो ड्राई एयर होती है उसकी कंपोजिशन फिक्स रहती है। उसकी कंपोजिशन अगर कभी भी आप चेक करोगे ड्राई एयर की, तो उसमें नाइट्रोजन 78% होगा, ऑक्सीजन 21% होगी, ऑर्गन 0.94% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होगी और हाइड्रोजन 0.01% होगी। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, और ये कंपोजिशन फिक्स है क्योंकि एयर एज अ प्योर सब्सटेंस हम ट्रीट कर रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंस है तो आप किसी भी रूम के इस कॉर्नर से ले लो, उस कॉर्नर से ले लो, अर्थ में कहीं भी ले लो, ये कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी। जो एयर है उसमें 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, 21% ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब जो एयर कंडीशनिंग है ना, देखिए ये एक्चुअली जो साइकोमेट्री है ये पूरी की पूरी आपकी एयर कंडीशनिंग इस पर डिपेंड कर रही है। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है बेटा,
एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एयर टेम्परेचर। तो एयर कंडीशनिंग क्या है? जो आप एसी लगाते हो घर में, तो क्या क्या चाहते हो? एसी से कूलिंग करे। तो एयर कंडीशनर क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एयर टेम्परेचर। आपका जो एयर है उसका टेम्परेचर कम कर दे। साथ में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अभी समझाऊंगा क्या होती है ह्यूमिडिटी। कभी आपने सुना होगा जब बारिश हो रही होती है तो आप बोलते हो यार आज ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ह्यूमिडिटी? बचपन से सुनते आ रहे हो, आप भी बोलते हो कि आज यार बहुत ह्यूमिडिटी है। आप हमेशा ये भी टर्म यूज करते होगे कि यार गर्मी तो नहीं है, आज टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, मगर ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही है। ओके, यूज करते हो कि नहीं करते हो? सर उमस सर। यस सर, उमस। उमस है ना? बट उसका व्हाट इज द मीनिंग, साइंटिफिक मीनिंग, जो उसका इंजीनियरिंग में मीनिंग है या उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, वो आपको नहीं पता है ना? कि ये उमस है क्या? आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, बट उसका मीनिंग आपको नहीं पता, और वो कैसे आपको उसकी वजह से गर्मी लग रही है, ठंडक लग रही है, आपको नहीं पता। तो एयर कंडीशनिंग में बेटा हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर तो कंट्रोल करते हैं, हमने एयर ठंडी करी, साथ में हम उसकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करते हैं, साथ में क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्वालिटी इन द सेंस कि एयर है बाहर, मैंने तो अभी आपको बताया कि ड्राई एयर जो होती है उसमें फिक्स होती है उसकी कंपोजिशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कंपोजिशन फिक्स है। मगर बेटा जो ड्राई एयर में साथ में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, दो टर्म होती है, एक होती है ड्राई एयर, उसकी कंपोजिशन फिक्स है, बट जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें डस्ट पार्टिकल भी मिल गए हैं, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर। मगर जो एटमॉस्फेरिक होती है उसमें डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूशन, ये सब होते हैं। तो क्वालिटी मतलब उसको फिल्टर करते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं कि उसमें डस्ट पार्टिकल ना हो, पॉल्यूटेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी मेंटेन करता है। साथ में वेंटिलेशन इन अ स्पेस। वेंटिलेशन, आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ और उसी के अंदर की एयर लेते रहो, तो कुछ टाइम बाद आपको क्या हो लगेगा? सफोकेशन सी होने लगेगी वहां, आपको लगेगा नहीं यार फ्रेश एयर आनी चाहिए। तो दैट इज वेंटिलेशन। कि अगर आप अपनी एयर को, जो रूम की एयर है, उसको रिप्लेस कर रहे हो आउटर साइड की एयर से, दैट इज वेंटिलेशन। तो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है बेटा? हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, हम साथ में वेंटिलेशन करते हैं जो हमारा स्पेस है। अब स्पेस क्या है? वो बिल्डिंग हो सकती है, वो व्हीकल हो सकता है, या तो हम किसी कमरे के अंदर बैठे हो बिल्डिंग के, उसके हॉल के अंदर बैठे हो, किसी सेमिनार हॉल के अंदर बैठे हो, उसके अंदर एसी चल रहा हो, तो वहां पर हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है, साथ में वेंटिलेशन देना है। या फिर किसी व्हीकल में बैठे हो, कार में बैठे हो, किसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, एसी, तो वहां क्या कर रहे हैं? हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ में वेंटिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग। ये है पूरी एयर कंडीशनिंग। ओके, ये सारे फंक्शन आपका एयर कंडीशनर करता है। तो इस तरीके की यूनिट होती है। एक्चुअली सर यस, ड्राई एयर फिर कहाँ मिलती है सर? ये मतलब एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है हमारे, या थोड़ी अलग से कुछ इसका हिसाब होता है ड्राई एयर का? अभी 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 डिस्कस होगा बेटा साहब, ठीक है? अभी अभी मैं एक टाइप की और एयर बताऊंगा आपको। अभी आप 3-4 टाइप की एयर देखोगे कि 3-4 टाइप की एयर होती है, ठीक है? तो वो कहाँ, सब हमारे अगल बगल ही है, अभी बताएंगे, ठीक है? तो ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है किसका? स्प्लिट एसी का। ओके, तो ये इसकी एक क्या है? कंडेंसिंग यूनिट है जो आउटर यूनिट बोलते हैं, और ये आपकी इनसाइड यूनिट है, इंडोर यूनिट है। अब देखिए हो क्या रहा है, जो आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो किससे बना हुआ है? एटमॉस्फेरिक एयर से। देखिए दो टाइप की एयर होती है, एक तो ड्राई एयर, दूसरी एटमॉस्फेरिक एयर। तो ड्राई एयर की कंपोजिशन तो फिक्स है, उसमें इतना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सब फिक्स है, ऑर्गन सब फिक्स है उसका। बट जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो क्या है? वो ड्राई एयर प्लस साथ में जो आपका लोकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ रहा है, धूल उड़ रही है कहीं पर। अगर आप तो अभी तो आप कह रहे थे कि सर कंपोजिशन सेम होगी, मगर अब आप किसी खेत में खड़े हो जाओगे जहाँ हल लग रहा है या रोड बन रही है किसी उसके, तो वहां पे क्या होगा? पॉल्यूशन डिफरेंट होगा। तो और सेम आप किसी पहाड़ में चले जाओ तो वहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो क्या होती है? ड्राई एयर प्लस जो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है, लोकल इन्वायरमेंट इफेक्ट आ रहा है। तो अब जो एसी है वो किसको डील कर रहा है? वो क्या लेगा? आप वो ड्राई एयर लेगा कि एटमॉस्फेरिक एयर लेगा? किसको डील करेगा वो? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर मेक्स अप द एनवायरनमेंट इन ऑल द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो जितने भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है सब एटमॉस्फेरिक एयर को डील करते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे हम। हमने ड्राई एयर डिफाइन कर दी थी, क्या होती है ड्राई एयर? क्या होती है? प्योर सब्सटेंस
और ये एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है इसको देखना पड़ेगा। ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। तो 78% तो नाइट्रोजन था और 21% क्या था, ऑक्सीजन थी। तो 78 प्लस 21 करोगे तो आप कितना आएगा, 99। यस सर। 78 99 यानी कि 99% तो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में, और बाकी स्मॉल अमाउंट में सम अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑर्गन, हाइड्रोजन, और स्मॉल अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी सब गैसेस। तो जो एयर होती है इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एयर है, कंटेन सम वाटर वेपर एंड नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट एंड रिफर्ड एज एटमॉस्फेरिक एयर। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ड्राई एयर पता थी क्या होती है, ये होती है ड्राई एयर। बट जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो एयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे सराउंडिंग में है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें वाटर वेपर हो सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कमरे में पानी गिरा दो, अभी थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। कहाँ गया पानी, सर अगर इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया, कहाँ चले गया, एयर में मिक्स हो गया ना, एयर में। यस सर। एयर में मिक्स हो गया। अगर आपने सुना होगा कि जो मुंबई है या गोवा है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है। क्यों है ह्यूमिडिटी, क्योंकि वहां पर कोस्टल एरिया है, पूरा समुद्र है, और वहां पर जब दिन में सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ। तो एयर कहते के हैं साथ। कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर क्या है, मॉइस्चर बहुत होता है एयर में। तो एयर क्या होता है, जो एयर है उसमें क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग वाटर है, वाटर बॉडीज एंड लेक है, रिवर है, या कहीं पर कुछ वाटर वैसे अवेलेबल है, तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैसियस फॉर्म में मिक्स हो गया एयर के साथ, तो एयर का पार्ट बन गया हो। साथ में नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट, आप दिल्ली चले जाओगे, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, आप इधर से दिल्ली से आके देहरादून चले जाओगे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें क्या होता है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर प्लस नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट। नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट में डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कार्बन पार्टिकल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, देखिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली चले जाओ तो पॉल्यूशन कम हो, कुछ ज्यादा होगा, और देहरादून चले जाओ तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। सिमिलरली आप कोस्टल एरिया में चले जाओ तो वाटर वेपर बढ़ जाएंगे, और आप राजस्थान चले जाओ ड्राई एयर मिलेगी आपको, बिल्कुल एकदम, मतलब उसमें वाटर वेपर नहीं होंगे। ओके, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो इट मीन्स जो एटमॉस्फेरिक एयर है, क्या ये प्योर सब्सटेंस होगी, जो एटमॉस्फेरिक एयर नहीं होगी, ये प्लेस टू प्लेस इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है कि कितना डस्ट पार्टिकल होगा, कितना वाटर वेपर होगा, कितना इसमें पॉल्यूटेंट होंगे, फिक्स नहीं है। तो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या नहीं है, वो क्या नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब दूसरी टाइप की एयर आती है मॉइस्ट एयर। अब क्या आती है दूसरी टाइप की एयर, मॉइस्ट एयर। अब देखिए, आपने एयर कंडीशनिंग में डील करना है, आपने किसको डील करना है, एयर कंडीशनिंग को। तो पहला स्टेप ही एयर कंडीशनिंग का ये होता है कि जो बाहर से एयर ले रहा हो उसको फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करेगा तो उसमें जितने भी पॉल्यूटेंट हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, फिल्टर उनको रिमूव कर देगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक एयर का जरा एक बार कंपोजिशन बताइए, क्या थी एटमॉस्फेरिक एयर में, क्या क्या था मिक्सचर था, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या मिक्सचर था, सर वाटर वेपर थे, ड्राई एयर और प्लस वाटर वेपर ड्राई एयर, प्लस वाटर वेपर, नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट, मतलब नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स थे। पॉल्यूटेंट। तो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमने फिल्टर कर लिए। अब क्या बचा, वाटर अब क्या, वेपर्स वाटर वेपर ही बचे बस खाली, सर, और ड्राई एयर बची। ड्राई एयर। तो मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज नोन एज मॉइस्ट एयर। तो आपने तीन टाइप की एयर देख ली अभी। फर्स्ट वन इज ड्राई एयर, दैट इज उसकी कंपोजिशन फिक्स है, वो प्योर सब्सटेंस है। दूसरी एटमॉस्फेरिक एयर, जिसमें वाटर वेपर प्लस पॉल्यूटेंट होते हैं। अगर पॉल्यूटेंट हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचती है, मॉइस्ट एयर, Moist दैट air. इज मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड ड्राई एयर। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर changes as a result of condensation and evaporation from the ocean, lake, river, shower and even from the human body. तो जो ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ये भी कंटिन्यूअसली चेंज होने में लगा है ना। अगर मान लीजिए किसी झील के किनारे हैं आप, तो वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन हो रहा है।
या फिर कभी ठंडों में क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, तो अगर वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर वेपर कम होगा। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करने में लगा है। ओके, तो यानी कि जो ये सिर्फ ड्राई एयर प्योर सब्सटेंस है, एटमॉस्फेरिक एयर आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं है। सिमिलरली जो मॉइस्ट एयर है वो भी क्या है, आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्लियर? मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई, ड्राई एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्ट एयर। आपको तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। ये सब आपके काम का नहीं है वैसे, चलिए बता देता हूं। The temperature of air in the air conditioning application ranges from 10 to 50 degrees centigrade. In this range, the dry vapor can be treated as ideal gas with CP value of 1.005 kilojoule per kg Kelvin. At 50 degrees centigrade, the pressure of water is 12.3 kilopascal. At pressure below this value, water vapor can be treated as ideal gas. Therefore, water vapor in air behave as if it exists alone, and moist air pressure P is the sum of partial pressure of dry air and water vapor. देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज, समझिएगा। एक कंटेनर है, इसके अंदर मॉइस्ट एयर है। कौन सी एयर है? मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ओके, अब देखिए ड्राई एयर तो प्योर सब्सटेंस है ना, और ड्राई एयर को हम ट्रीट करते हैं एज अ आइडियल गैस, कर सकते हैं आइडियल गैस, एयर को तो हम आइडियल गैस ट्रीट करते ही हैं। साथ में है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, तो इस सपोज इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P है, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर P है, जिसमें से कुछ प्रेशर ड्राई एयर का है एयर का, और कुछ प्रेशर वाटर वेपर का है PV। समझिएगा फिर से, जो टोटल प्रेशर था, अगर हमने कोई कंटेनर लिया उसमें मॉइस्ट एयर भरी, उसका प्रेशर नाम था P आया, तो जो P होगा वो समेशन होगा PA प्लस PV का। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, और PV क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। फिर से सुनिए, आपने डाल्टन का रूल पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, P इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। डाल्टन लॉ सुना है आपने? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, यस सर। फॉर अ गिवन वॉल्यूम द प्रेशर exerted by the dry air is PA and pressure exerted by the water vapor is PV। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है आप लोगों को। हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर क्या फिल थी? मॉइस्ट एयर। ओके, अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम V है और खाली सिर्फ ड्राई एयर है, अभी देखिए जो मॉइस्ट एयर है उसमें क्या क्या है, एक तो ड्राई एयर है और साथ में क्या है? वाटर वेपर। अगर इस वॉल्यूम के अंदर सिर्फ ड्राई एयर एग्जिस्ट करेगी तो प्रेशर कितना होगा? PA। और इस कंटेनर के अंदर सिर्फ अगर वाटर वेपर होते तो प्रेशर कितना होता? PV। क्लियर? और दोनों अगर साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो प्रेशर कितना है? P। और वो P किसके बराबर है? PA प्लस PV के बराबर। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट एयर। ठीक है, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, अभी मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत है। अब बेटा ये साइकोमेट्री क्या है? इन एयर कंडीशनिंग वी डील विद मॉइस्ट एयर, एंड मॉइस्ट एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। हम एयर कंडीशनिंग में हम कौन सी एयर को ले रहे हैं? एटमॉस्फेरिक एयर को। एटमॉस्फेरिक एयर को फर्स्ट हम फिल्टर कर दे रहे हैं, तो पॉल्यूटेंट तो हमने निकाल दिए। अब क्या बचा हमारे पास? ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, और उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो एयर कंडीशनिंग में हम किससे डील कर रहे हैं? मॉइस्ट एयर से। और मॉइस्ट एयर क्या नहीं है? प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो जनरली क्या होता है, हमको स्टेट डिफाइन करने के लिए
जनरली हमको स्टेट डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेट डिफाइन करो किसी चीज की, आपने कहा आपके पास वैल्यू है प्रेशर और टेम्परेचर की, तो आपने कहा ये स्टेट है, इसकी स्टेट फिक्स हो गई। या सपोज आपने कहा मेरे पास टेम्परेचर है या और एंट्रोपी है, तो आपने स्टेट फिक्स कर दी कि ये स्टेट है। मगर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के केस में होता है कि दो प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं। ओके, मगर अगर कोई चीज प्योर सब्सटेंस नहीं है तो उसके केस में हमको उसकी स्टेट डिफाइन करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, कितनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज। अभी देखिए कुछ चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, सुनते रहिए धीरे धीरे और समझते रहिए, जितना जहां तक कैच कर सकते हैं वहां तक कैच करते रहिए, चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, जो मॉइस्ट एयर होती है वो मिक्सचर होती है ड्राई एयर और वाटर वेपर का, जिसको डिफाइन करने के लिए हमको, जिसकी स्टेट डिफाइन करने के लिए हमको 3 प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो 2 प्रॉपर्टी तो हमको पता है, प्रेशर और टेम्परेचर, और एक प्रॉपर्टी हम किसकी लाते हैं? वाटर वेपर की, कि वाटर वेपर की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं मॉइस्ट एयर की, उनको बोलते हैं हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी? मॉइस्ट एयर की, जो ड्यू टू द मॉइस्चर इन द एयर, जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है, जो नई प्रॉपर्टीज आई है निकल के, उनको बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। एंड द सब्जेक्ट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द मॉइस्ट एयर इज नोन एज साइकोमेट्री। तो 2 टर्म है यहाँ पर, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी और दूसरी है साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो मॉइस्ट एयर की होती हैं प्रॉपर्टीज, और उनकी स्टडी करना कि उनका बिहेव, उनके ऊपर होने से, नीचे होने से, या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं किसी मॉइस्ट एयर में उन प्रॉपर्टीज को, वो कहलाता है साइकोमेट्री। अभी यहां तक का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट दिस इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर द साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री जो मॉइस्ट एयर है उसकी प्रॉपर्टी, आप अभी तक आपने कुछ प्रॉपर्टी ऐसी सुनी थी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये आप पहले से जानते थे, है ना, सुनी हुई थी आपकी। अब साइकोमेट्रिक की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आएंगी जो आपने कभी सुनी नहीं है, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, है ना, एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ड्राई एयर, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये आपने कभी सुनी नहीं है। एक आपने उसमें से सुनी हुई है ह्यूमिडिटी, मगर उसका भी मीनिंग आपको पता नहीं है कि क्या होता है। तो वो प्रॉपर्टीज जो मॉइस्ट एयर की होती हैं उनको बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो? पहली है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, दूसरी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, तीसरी है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, चौथी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पांचवी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर और एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज मॉइस्ट हैं? एयर की। मॉइस्ट एयर की। और इन प्रॉपर्टीज की स्टडी क्या कहलाती है? साइकोमेट्री साइकोमेट्री। प्रॉपर्टीज। क्लियर बेटा यहां तक? यस सर। बस एक ही जना पढ़ रहा, और लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ? अनुज? सर मॉइस्ट एयर की जो प्रॉपर्टी है वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, और साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर ये स्टडी करेंगे। हाँ, साइकोमेट्री के अंदर ये करेंगे। ओके सर। तो देखिए पहली क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, 2 टाइप की ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इन दोनों की डेफिनेशन में आपस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो डिफरेंट थिंग है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफरेंट थिंग है। So let's start our discussion with specific humidity. This specific humidity is also known as absolute humidity. तो जो ये specific humidity है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? Absolute humidity या फिर humidity ratio. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया define absolute humidity, तो डेफिनेशन किसकी देनी है? Specific humidity की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया define humidity ratio, तो डेफिनेशन किसकी देनी है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है। सिंबल क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का? ओमेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। देखिए डेफिनेशन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये है कि
जो मास ऑफ वाटर वेपर है किसमें, यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर में। तो इसको डिफाइन करने के लिए कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 केजी क्या है, ड्राई एयर, हमारे पास 1 केजी ड्राई एयर है, और ड्राई एयर क्या है, प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन आपको पता है। तो उस 1 केजी ड्राई एयर में अगर मैं कुछ वाटर वेपर ऐड कर दूं तो वो क्या कहलाएगी उसकी, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 केजी क्या था, ड्राई एयर, उसमें हमने कुछ मॉइस्ट एयर मिला दिया, अब क्या बन गई, अब क्या बन गई, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर बन गई। तो हमने 1 केजी ड्राई एयर में कुछ वाटर वेपर मिलाए और वो बन गई मॉइस्ट एयर। तो हमने कितने वाटर वेपर मिलाए, ओमेगा। तो ओमेगा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमने अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ओमेगा कैसे डिफाइन होता है, मास ऑफ वाटर वेपर। तो हमने मास ऑफ वाटर वेपर कुछ एम बी ऐड करें, एम बी इज द मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर में हमने एम बी ऐड किया, तो ये हो गया हमारा क्या, ओमेगा। सपोज हमारे पास इन जनरल अगर 1 केजी नहीं है, सपोज हमारे पास जो मास ऑफ ड्राई एयर है वो क्या है, एम ए। हमारे पास मास ऑफ ड्राई एयर क्या है, एम ए मतलब एयर, ड्राई एयर, ठीक है। और मास ऑफ वाटर वेपर उसमें कितने मिलाए, एम बी। तो टोटल मास कितना हुआ मॉइस्ट एयर का, एम बी प्लस एम ए। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम, नहीं ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कैसे लिखेंगे ओमेगा को, ओमेगा इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम बी प्लस एम ए, एम बी अपॉन एम बी अपॉन, सर एम बी प्लस एम ए। टोटल बेटा, टोटल में थोड़ा ना करना है, ड्राई एयर में करना है, टोटल में नहीं करना है, किस में करना है, ड्राई एयर, ड्राई एयर में। एम ए, हाँ। इस तरीके से समझिए जैसे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम या पर यूनिट मास। तो 1 केजी मास में कितना वॉल्यूम है, तो कैसे डिफाइन करते हैं उसको, V बाय एम। ओके, तो सिमिलरली 1 केजी ड्राई एयर में कितने वाटर वेपर है, इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर। क्या, किसका रेशियो है, मास, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है या हमारा रूम है, इस रूम के अंदर क्या है, मॉइस्ट एयर भरी हुई है, कौन सी एयर है, मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर किस किस का मिक्सचर है, मॉइस्ट एयर किस किस का मिक्सचर है, अरे मॉइस्ट एयर किस किस का मिक्सचर है, यस, ड्राई एयर प्लस वाटर। ड्राई एयर और ड्राई एयर और वाटर। तो इसमें कुछ जो मास होगा वो वाटर वेपर का होगा और कुछ मास ड्राई एयर का होगा। बट जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो किसका रेशियो है, ओमेगा इक्वल टू किसका रेशियो है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, टोटल मास से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, मास ऑफ एयर से। ओके, सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज मास ऑफ WV मतलब वाटर वेपर एंड डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई एयर, DA मतलब ड्राई एयर। ओके, सो MB अपॉन MA, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है केजी ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसका भी मास केजी और इसका मास भी केजी, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसका मास है, मास ऑफ किसका है, वाटर वेपर, और ये किसका है, ड्राई एयर का। दोनों चीजें आपस में डिफरेंट है। क्लियर, तो सेंस जरूरी है यहाँ पर, इसलिए सेंस बनाए रखने के लिए इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं, केजी ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाय केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, यस सर। ओके,
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, अब इससे आगे जानने की जरूरत आपके लिए नहीं है अभी। साथ में ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू 0.066 पीवी अपॉन पीए। ओके, सिर्फ इतना फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपके थर्ड ईयर में कोर्स है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो उसमें भी ये आप पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपकी क्लास में क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो ये जो स्लाइड्स है, पहले मैंने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग पढ़ाया था, तो उसकी बनी हुई है, तो उनके में डिटेल में था। आपके में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। किस वाले फॉर्मूले को? ओमेगा इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। और अगर ज्यादा है तो एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 0.622 पीवी अपॉन पीए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो बेटा आज का टाइम हो गया है, आज इतना ही रखते हैं लेक्चर को। मैं आपको एक यूट्यूब पे लेक्चर है मेरा, ठीक है, इसी सेम चीज पे वो अपलोड कर दे रहा हूँ आपकी गूगल क्लासरूम में, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब और जो ड्यू पॉइंट है और बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, और इन द नेक्स्ट क्लास मेरे को ये जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है मैंने, इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल नोट कर लिया था आपने, ये दोबारा दिखाऊं? ये सर कर लिया था। ठीक है, जिसने नहीं किया था बेटा एक बार देख लीजिए, मैं इसको गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, स्नैपशॉट ले लीजिए। वीडियो लेक्चर की Yes, भी बेटा। सेंड कर देना रिकॉर्डिंग। कल का भी कर देंगे बेटा। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। ओके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए और उसके बाद ये इनको रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर।